Students, in your previous CBSE classes, you have already have a knowledge about magnetic effects of electric current. Yes or no? When a current carrying conductor, when current flows through a conductor, magnetic field is produced through it. Who was the scientist who knew this or discovered? Oersted experiment. You know about this Oyster. Oersted experiment? Sir Oyster. So here we'll see first how to know in which direction the current will flow and in which direction the magnetic field will be produced. Yes. Students, you know right hand thumb rule. Okay, you know students, right hand thumb rule. Already you know this. This is the call hand rule, or you know the right hand thumb rule. We also says it right hand thumb rule. Friends, you see here how the person is holding the conductor in his right hand. And if you are holding the conductor, hold your pen like this. Yes or no? As he is holding, students, hold your pen like this. If this is the pen and this is the conductor, the current is flowing upward. If the thumb is representing the direction of current, then the encircled fingers will represent the direction of magnetic field. Yes or no? You may hold the current conductor like this. You may hold the conductor like this. You may hold the conductor like this. Yes, it will vary because the current direction is going to vary. So as for that, the direction of magnetic field is also going to vary. Students, you see here, if the thumb represents the direction of current, then the encircled fingers are representing the direction of magnetic field. I'll come. What is magnetic field? So this is given by right hand thumb rule, and student vice versa is also true. If the current is going in upward direction, you see. In this case, the magnetic field is entering. Yes or no? Magnetic field is entering. Magnetic field is entering. That is cross. Yes or no? And here, the magnetic field is coming out. Yes or no? You can see this one also here. So see, the current is going in upward direction. Yes or no? Cross means the magnetic field is entering into the plane, and dot means the magnetic field is coming out. Here the magnetic field is entering. Yes or no? If I'll student draw the magnetic lines of force, here the magnetic field is going into the plane, and here the magnetic field is coming out of the plane. And basically, into the plane is denoted by cross, and out of the plane is denoted by dots. This is the symbol of this meaning. This meaning is out of the plane, and the symbol of this meaning cross is into the plane. So if the current is going upward, then the magnetic field lines will be like this. Here entering and here coming out. And if the current is going downwards, students, what will happen? You know, if thumb will represent downward direction, then in this direction the current will be entering, and in this direction the current will be coming out. Yes or no? So now you hold the conductor like this. You hold your pen like this, students. So you see the current is entering in the left side, and in the right side the current is coming out. So easily you can know by applying this right hand thumb rule or cork rule or screw rule in which direction. So here you see if the current is going in upward direction. So in this part, what is happening? The current is coming out now, and in this part the current is entering. Getting my point? And if the conductor will be hold like this, if the current is going in this direction, now you hold the conductor like this. Hold your plane horizontal to your copy, and you see if the thumb is representing the direction of current, then see the encircled fingers will be in the upward direction. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है, और नीचे वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है. मतलब पूरे ऊपर वाले पार्ट में सारे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है, और सारे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है. स्टूडेंट्स, थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और एनसर्कल्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. एंड स्टूडेंट वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू. अगर हम सर्कुलर कॉइल की बात करें, अगर ये एनसर्कल्ड फिंगर्स करंट की डायरेक्शन दे, तो थंब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे सकता है. जैसे कि you can see here, students, if I am taking a circular coil, yes or no, and here this is the circular coil. You make a circular coil on your copy. If the current is going in this direction, if the current is going in this direction, student, this is clockwise or anti-clockwise? Semi. The current is going. The current is going anti-clockwise. That means आप अपने encircled fingers जो है, encircled fingers इस तरफ है, सारे encircled fingers. Current is encircled fingers. तो अगर encircled fingers इस तरफ होंगे students, तो मुझे बताओ thumb यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? ऊपर. ऊपर की तरफ होगा thumb. तो ऊपर की तरफ मतलब ऊपर. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरफ होगा? डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन डॉट. करेक्ट? यस और नो? अगर मैं ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स, मैंने अभी करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज लिया, ठीक है, आई जस्ट टुक इट क्लॉकवाइज,
तो अभी अगर क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे, अपनी कॉपी पे एक सर्किल बनाओ, उस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दो और अपनी फिंगर्स जो है ना एनसर्कल फिंगर्स को उसी सर्किल की तरह घुमाओ। तो अभी थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? इनटू द प्लेन ना, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। दैट मींस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है, दोनों केसेस पे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये वाले फिगर पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्लॉकवाइज है। मैंने जैसे बताया कि वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर थंब करंट को रिप्रेजेंट कर रहा था और एनसर्कल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे थे, तो अगर एनसर्कल्ड फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे तो थंब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है। एंड स्टूडेंट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट यू नो कि अगर हम एक बार मैग्नेट की बात करें तो ये अगर नॉर्थ पोल है और ये अगर साउथ पोल है, so it's always lines of force go from north to south. Yes or no? Externally they go to north to south and internally they go from south to north. That means magnetic field हमेशा north से निकलते हैं और south पे enter करते हैं। Am I correct? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जाता है और साउथ पोल में एंटर करता है। स्टूडेंट देखो यहाँ पर अगर सारे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो रहे हैं, बाहर की तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट देन इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल और इट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल। से भी कहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है? नॉर्थ पोल से ना। सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे, इस तरह यहाँ पर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड आएंगे। there will be so many magnetic fields coming out, so it will be treated as which pole? North pole, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से ही बाहर की तरफ आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। अभी ये वाला डायरेक्ट डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाया जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है सारे बाहर की तरफ होगा और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलता है, तो ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। एंड सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, एनसर्कल फिंगर्स अगर हम क्लॉकवाइज दिखा दे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है। तो अगर सारे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन क्रॉस 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 अगर इनटू द प्लेन सारे जाने लगे तो इनटू द प्लेन कहां पर जाते हैं? बेसिकली साउथ पोल में। सो इट विल बी ट्रीटेड एज ए साउथ पोल। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसा अगर आप देखते हो तो इफ द करंट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। करंट इज गोइंग आई अपवर्ड, आई अपवर्ड जा रहा है और यहाँ पर आई जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। करंट इज गोइंग डाउनवर्ड। फ्रेंड्स अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको जो जाता है वो क्लॉकवाइज जाता है या एंटी क्लॉकवाइज जाता है? यू सी हियर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। और यहाँ पर करंट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो एनसर्कल करेगा उसको वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो क्या होगा? क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड? अभी डायरेक्शन की बात सबको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स देखो साइंस में सबसे जरूरी है कि एक फिजिकल क्वांटिटी, वो फ्लक्स क्यों ना हो, वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों ना हो, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी, उसको मेजर करना बहुत जरूरी है। और मेजर करना जितना जरूरी है तो उसकी यूनिट्स के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, ये एक बार मैग्नेट। सारे ये जो लाइंस, ये सारे लाइंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट यू से टू दिस लाइंस? Magnetic field lines. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस है स्पेस पे जहां पर मैग्नेटिक फोर्स की एक्सपीरियंस होने का चांसेस ज्यादा है। मतलब यहाँ पर अगर मैं कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर और एक मैग्नेट रखा तो फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा इसी लाइन के हिसाब से इसी लाइन पे ज्यादा है। जैसे हम इलेक्ट्रिक लाइंस को डिफाइन करते हैं, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस वेयर द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज मैक्सिमम, लाइक दैट magnetic lines of force are those imaginary lines along which the magnetic force is maximum. Yes or no? और थोड़ी ना हम लाइंस ऑफ फोर्स को एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स है। लाइंस ऑफ फोर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया स्टूडेंट्स इज नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स। Magnetic flux is symbolized as phi. Magnetic flux is symbolized as phi, and the CGS and the SI unit of phi students Weber. SI unit of phi is Weber. That is magnetic lines of force in a particular area is known as flux, and the CGS unit of flux is Maxwell. ये जानना जरूरी है यूनिट कन्वर्सन में सर। एंड स्टूडेंट अगर हम फ्लक्स डेंसिटी की बात करें, फ्लक्स डेंसिटी, that is B, flux density that is B, that is flux per unit area, that is flux per unit area, that is flux per unit area.
दैट इज phi by a, ठीक है। अगर मैं इसकी एसआई की यूनिट की बात करूं तो एरिया की यूनिट क्या है आपको पता है, मीटर स्क्वायर। सो हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स इज नोन एज टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो, so the SI unit is how much, SI और MKS unit is वेबर पर मीटर स्क्वायर, that is known as टेस्ला। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें स्टूडेंट, सीजीएस यूनिट मतलब दैट इज मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, that is equal to Gauss. So CGS unit of magnetic field is Tesla, and sorry, CGS unit of magnetic flux density is Gauss, and SI unit is Tesla. Okay, and student, one Tesla is equal to 1 meter, 1 Weber per meter square. Correct? And student, you remember 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Maxwell. 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Maxwell. 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Maxwell. Understood student? तो अगर हम यहाँ पर टेस्ला और गॉस के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो 1 वेबर मतलब 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल लिखे हम वेबर के बदले में, करेक्ट। और 1 मीटर स्क्वायर इज हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट? सर 10 to the 4, 1 मीटर इज 10 to the 2, 10 to the 2 का स्क्वायर 10 to the 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये कितना हो गया 10 to the power 4 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 to the 4 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10 to the 4 गॉस। तो अगर कन्वर्शन की जरूरत पड़े तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 10 टू द पावर 4 गॉस, ठीक है। तो जस्ट कीप इन माइंड, क्योंकि कहीं कहीं पे ये यूनिट्स थोड़ा इंटरचेंज हो सकता है, सो फॉर दैट ओनली यू हैव टू रिमेंबर। सो यू गॉट अ बेसिक आइडिया अबाउट लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है और फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। क्योंकि हम अब इसको मेजर करने जा रहे हैं, जब मेजर करने जा रहे हैं तो उसकी यूनिट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सर आप मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन और एक बार बता सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें, सो दैट इज लाइंस ऑफ फोर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स कितने हैं दैट इज वी डोंट नो, वी वांट टू स्पेसिफाई, वी आर कमिंग वेरी स्पेसिफिकली टू द एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी। फ्लक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितने लाइंस ऑफ फोर्स मिलेंगे हमें, उसको हम फ्लक्स के दौरान डिफाइन किए, ठीक है। सर तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी, देखो स्टूडेंट, जैसे हम डायरेक्शन की बात किए ना, ये मतलब एक सोलेनॉइड है, कॉइल की तरह है। तो मैं आपको दो चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, कि जैसे हमने बताया कि जैसे मैंने बताया ना कि अगर करंट एनसर्कल फिंगर्स करंट की डायरेक्शन दिखाए तो थंब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा सकता है। तो लाइक दैट यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ना मैं एक दो डायग्राम बताता हूँ, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों में क्या हो रहा है। आई एम शोइंग यू टू आयरन कोर्स। मैंने एक से वाइंडिंग ऐसे शुरू किया, ठीक है, नीचे से लिया, ऊपर से आया, मस्त आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर से आया, सॉरी ये जो करंट है नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये जो ऊपर वाला आया वो ऐसे आ गया। यहाँ पर करंट एंटर हुआ और यहाँ पर करंट एग्जिट हुआ। ठीक से मैंने ठीक उसी तरह और एक चीज मैंने किया, यहाँ पर भी करंट जा रहा है, बट सी द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस देखो ठीक से, तो पता चल जाएगा कि डायरेक्शन में जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये डायग्राम एग्जाम में बनाते हैं वक्त, बोर्ड एग्जाम में भी गलती करते हैं, बट वो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू नो। स्टूडेंट देखो ये दोनों फिगर में क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है, यू कैन सी स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मानो कि मेरा एक आयरन कोर है, मैंने एक पे वाइंडिंग जो है ना, मैंने एक पे ऐसे किया है वाइंडिंग, देखो ये पहले वाले डायग्राम में, ये जो पहले वाला केस आप देख रहे हैं, ये वाला केस पे आप देखो, पहले वाला केस पे मैं नीचे से लिया हूं, am I करेक्ट? समझ में आ रहा है सबको? मैं कॉइल को नीचे से लिया हूं, बट ये सेकंड फिगर पे मैं क्या किया हूं, कॉइल को ऊपर से लिया हूं। बेसिक समझ में आया सबको? दोनों फिगर में वाइंडिंग में क्या बदला था, वाइंडिंग कैसे लिया हूं मैं? हाँ, एक पे दोनों में करंट एंटर कर रहा है, नो डाउट, यहाँ पर भी करंट जा रहा है और यहाँ पर भी करंट भी जा रहा है और यहाँ इस तरफ में करंट निकल रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर मैं कॉइल को नीचे से लेके ऊपर की तरफ ला रहा हूँ वाइंडिंग को, और यहाँ पर नीचे ऊपर से लेके नीचे की तरफ ला रहा हूँ। मतलब एक में क्या कर रहा हूँ मैं, देखो एक में मैं क्या कर रहा हूँ, फिंगर को नीचे से ले रहा हूँ, फिंगर को आई एम टेकिंग ऑल माय फिंगर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन और एक में क्या कर रहा हूँ, फिंगर को पूरा उसके ऊपर से ले रहा हूँ, गेटिंग माय पॉइंट ना, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी डायरेक्शन जानने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो करंट जा रहा है यहाँ पर फिंगर नीचे से जा रहा है ना, तो मतलब सारे करंट की डायरेक्शन कैसे है, यहाँ पर इस तरफ होगा ना सारे करंट की डायरेक्शन।
तो और यहाँ पर करंट ऐसे एंटर निकल रहा है और यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है। समझ पे आया? समझ पे आ रहा है ना स्टूडेंट? यहाँ पर देखो, इफ आई विल शो यू हियर, छोटा सा चीज है बट एक बार समझ लेने से कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे भी जा सकता है, दोनों में थंब की डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। मैं ऐसे जो डायग्राम किया हूं मैं, एक पे ऐसे, एक में अगर ये वाले में थंब ऐसे हो सकता है और सेकंड फिगर में थंब का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट ना? जो पहला डायग्राम में किया हूं लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर थंब की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा, लेकिन पहले वाले में और सेकंड वाले में कहां पर होगा थंब की डायरेक्शन? टोटल ऑपोजिट। टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ये समझ पे आया सबको? यहाँ पर अगर मैं एनसर्कल फिंगर्स की बात करूं, एनसर्कल फिंगर्स नीचे जा रहा है तो थंब किस तरफ होगा स्टूडेंट्स? टुवर्ड्स राइट ना, थंब का डायरेक्शन। सबको समझ पे आ रहा है? बहुत क्रुशियल है, आप पकड़ के देख सकते हो अपनी पेन को। यस सर। और यहाँ पर अगर ऊपर से मैं लेके जाऊं तो थंब का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? टुवर्ड्स राइट। थंब का डायरेक्शन मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट है। समझ पे आया? एंड इट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। तो देखो, ये अगर मैं नॉर्थ पोल ले लूं और साउथ पोल ले लूं तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ पे क्या होता है? एंटर करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर थंब की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मतलब सारे मैग्नेटिक का डायरेक्शन जो है किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो इनटू द प्लेन अगर बात करें, अगर हम इनटू सारे इसके थ्रू सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरफ होगा? राइट की तरफ होगा। मतलब सारे मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर निकलेंगे ना स्टूडेंट्स, और यहाँ पर सारे मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेंगे। ये सर नो? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो यहाँ से अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो ये वाला साइड किस तरह बिहेव करेगा? बताओ मुझे। नॉर्थ की तरह ना? नॉर्थ पोल। और ये किस तरह बिहेव करेगा? साउथ। अभी आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा, ये क्यों नॉर्थ दिखाया और ये क्यों साउथ दिखाया। ठीक है? ठीक इसी तरह इसी डायग्राम में अगर हम देखेंगे, अगर ऊपर से वाइंडिंग ले लिए तो थंब इज मतलब सारे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो यहाँ से एंटर कर रहे हैं और यहाँ से एग्जिट। सो एंटर कर रहे हैं मतलब ये साउथ की तरह बिहेव करेगा और ये नॉर्थ की तरह। तो आप ये दिमाग में रख लो कि थंब जिस तरफ डायरेक्ट करेगा दैट विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। क्यों? उसका रीजन मैंने समझा दिया आपको। सबको समझ पे आया? सोलेनॉइड पे कौन सा वाला पोल नॉर्थ होगा, कौन सा वाला पोल साउथ होगा, वाइंडिंग कैसे हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ पे आ रहा है ना? यस सर। मतलब यस सर। आप एक कंडक्टर ले लिए, उसके ऊपर वाइंडिंग आप दो तरीके से कर सकते हो। मैं अगर मैंने बताऊं, अगर मैं तो एक वाइंडिंग है एंटी क्लॉकवाइज बना सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? एक वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हैं और एक वाइंडिंग स्टूडेंट हम क्लॉकवाइज बना सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। गेटिंग माय पॉइंट ना? यस सर। एक में क्लॉकवाइज कर सकते हैं वाइंडिंग, एक में एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग कर सकते हैं। सो इट विल वेरी कि कौन सी वाले पोल नॉर्थ हो जाएगा, कौन सी वाले पोल साउथ हो जाएगा। हाँ, दो करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, बट डायरेक्शन जो है ना उसका चेंज हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ पे आया? डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यस सर। हमें मेजर करना है। सिर्फ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं कहीं भी ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको अभी मेजर करने वाले हैं। वी वांट टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए जो लॉ की पहले मदद लिया गया, दैट लॉ इज नोन एज स्टूडेंट्स बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्या लॉ कहते हैं उसको? बायोट-सावर्ट्स लॉ। वो कोर्स पे नहीं है बट उसको जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो आ जाता है ना कभी कभी, तो उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये 12th में है बट इसको जानना जरूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इसके रिलेटेड आ जाता है। बायोट-सावर्ट, ये दोनों साइंटिस्ट है स्टूडेंट्स। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है लॉ की, बस लॉ को कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर करंट अपवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है जैसे आप देख रहे हो, और मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, पी पॉइंट पे। ठीक है, अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्रॉस इनटू द प्लेन होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए डीबी इज इनटू द पेज। समझ पे आ गया? मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया स्टूडेंट्स यहाँ पर, आई टुक ए स्मॉल पार्ट हियर, ठीक है, जिसका लेंथ मैंने बताया डीएल, और मैं आर दूरी पर खड़ा हूँ और मैं थोड़ा इंक्लाइन करके खड़ा हूँ कंडक्टर को। मतलब ये कंडक्टर तो कर्व है बट जिस पॉइंट में ले रहा हूँ वहां पर मैं एक वेक्टर बना दिया, लाइन वेक्टर, लीनियर वेक्टर। ठीक है, एंड दैट एंगल इज थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर स्मॉल कंडक्टर लिया तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। सो दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल लेंथ dl, आल्सो प्रोपोर्शनल टू I, कितना करंट जा रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दैट इज मतलब जितना दूर मैं चला जाऊंगा उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते होते जाएगा, और प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। sin थीटा क्यों है वो तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको समझ पे आएगा, बट फॉर नाउ बीइंग रिमेंबर कि अगर कोई यहाँ पर खड़ा है जितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, अगर यहाँ पर आ जाएगा तो सारे मैग्नेटिक फील्ड की कांटेक्ट में आएगा। चल दिस sin थीटा इज मतलब dl प्लस I। ठीक है, करंट किस तरफ जा रहा है और dl क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर में। ठीक है,
बट कंबाइन हम इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बायोट सावर्त। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने क्या मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट बाय 4 पाई। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, कितना करंट जा रहा है, कितना लेंथ है जो मैं निकाल रहा हूँ, इनटू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और ये म्यू जीरो जो है स्टूडेंट्स परमिएबिलिटी, म्यू जीरो क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैंने इस कंडक्टर को एक एयर पे रखा, मैंने इसको पानी पे रखा, कोई और एक मीडियम पे रखा, तो मीडियम अगर अलग अलग हो जाएगा तो ये मीडियम को जो मैग्नेटाइज कर रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। परमिएबिलिटी मतलब ये कितना, इसका एबिलिटी कितना रहता है मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड को उसके थ्रू जाने के लिए, परमिट करने के लिए। समझ में आ रहा है, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है कि जब मैंने एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को प्लेस किया, तो फिर जब प्लेस किया मैंने उसके थ्रू करंट जाने लगा, जब करंट जाने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साइड पे आने लगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके साइड पे लिंक हो रहा है उसका मतलब कैसे मीडियम उसको कैसे परमिट कर रहा है, दैट इज नोन एज परमिएबिलिटी। एंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, क्योंकि हमेशा आप कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई को 4 पाई की फॉर्मेट पे रखना, ताकि कैंसिल होके सिर्फ कांस्टेंट कितना मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 10 टू द -7। अगर मैंने आपको आई दे दिया, डेल दे दिया, साइन थीटा दे दिया, आर दे दिया, तो आप सिर्फ 10 टू द -7 मल्टीप्लाई करके डीबी निकाल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट, सो दैट म्यू नॉट 4 पाई इनटू 10 टू द -7। फ्रेंड्स अगर म्यू नॉट की यूनिट की बात करूं मैं, तो म्यू नॉट अगर एक साइड पे रखूं तो बाकी सबको एक साइड पे ले जाता हूं, डीबी into r square by I into dl, करेक्ट। साइन थीटा हैज नो यूनिट। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर डीबी का यूनिट क्या है, टेस्ला है ना, आर स्क्वायर का क्या है, मीटर स्क्वायर, करंट का क्या है, एम्पियर, और ये डीएल भी लेंथ है मीटर, तो कैंसिल हो गया। तो म्यू नॉट का यूनिट कितना हो गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। गॉट स्टूडेंट, दैट म्यू नॉट का यूनिट हो गया परमिएबिलिटी का यूनिट टेस्ला इनटू मीटर इनटू एम्पियर इनवर्स। तो ये हुआ हमारा बायोट-सावर्त लॉ की मैग्नीट्यूड हम निकालने के लिए कैसे बायोट-सावर्त लॉ की हेल्प लेके हम एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर पे, एक सर्कुलर वायर पे और फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसके लिए अप्लाई होगा ये। Now students will find the magnetic field due to a long straight conductor, due to an infinite conductor, due to a semi-finite conductor, फिर वेरियस उसके रिगार्डिंग क्या वेरियस क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, अगर मैंने अभी बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज हेडिंग magnetic field due to a long straight conductor, magnetic field due to a long straight conductor, due to a long straight conductor। तो एक कंडक्टर की जो लेंथ है ना, हम लेंथ को, ये लेंथ को हमने कैसे मेजर किया कि अगर मैं इस पॉइंट पे एग्जैक्टली ये पॉइंट पी है, आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है और आर दूरी पर मैं खड़ा हूँ, करंट अपवर्ड जा रहा है, मतलब बेशक यहाँ पर करंट इनटू द प्लेन होगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये कंडक्टर की जो लेंथ है उसको मैंने इस फाई नट के जरिए हमने रिप्रेजेंट किया। अगर ये फाई टू बढ़ जाएगा तो ये कंडक्टर की लेंथ भी बढ़ जाएगा, ये सब नो। अगर फाई वन की वैल्यू बढ़ गया तो इस साइड पे कंडक्टर की लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना शुरू करें तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला स्टूडेंट, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन यूज होके हुआ है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर 10th क्लास लेवल। यू विल बी स्टडीिंग ऑल दोस थिंग्स इन 12th और नेक्स्ट ईयर केवीपीए के लिए भी आप ये सब पढ़ोगे उसकी डेरिवेशंस के बारे में। बट अभी ये फार्मूला को हम कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं, हम उस पे जा रहे हैं। ठीक है, जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो B इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, राइट, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू आर। आर मतलब ये जो डिस्टेंस है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू आपको पता है ना कितना है, 10 टू द -7, करेक्ट। उसने दे दिया कि इस पे 5 एम्पीयर करंट जा रहा है एंड दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, तो आप आराम से निकाल सकते हो ना। यू नो sin 30, यू नो sin 60, यू नो द मीजर बाय 4 पाई का वैल्यू आपको पता है, आई का वैल्यू पता है, आर विल बी आल्सो गिवन, तो आप निकाल सकते हो ना आराम से। ये Yes फार्मूला sir. आप याद रख Yes, लोगे। sir. Yes sir. इस फार्मूला को बेस्ड करके हमें भी बहुत सारी चीज आहिस्ता आहिस्ता निकालने वाले हैं, उसके सब पॉइंट्स जो है वो हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। स्टूडेंट अगर कभी कभी उसने क्या किया कि इस एंगल को देता है, लेट दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, तो ध्यान से आपको देखना है कि कौन सा एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल। अगर मैं ये वाला एंगल करूं तो क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस फाई टू है ना, और ये बीटा जो है 90 माइनस फाई वन है ना।
And students, you know sin 90 minus theta is cos theta. Sin 90 minus theta is cos theta. अगर ये वाला एंगल दिया होगा अल्फा बीटा, अगर ये वाला एंगल दिया होगा तो सिंपल फॉर्मूला में क्या बदलाव आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, जैसे है वैसे रहेगा। बस sin phi 1 के बदले में क्या लिखेंगे, cos अल्फा प्लस cos बीटा। गॉट माय पॉइंट? हमने कुछ चेंज नहीं किया, बस sin phi 1 की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फा की जगह पे हम क्या कर दिए, ये अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस phi 2। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। अगर वो वाला दिया होगा एंगल, अगर ऊपर वाला अल्फा बीटा दिया हुआ है तो सिर्फ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू cos अल्फा प्लस cos बीटा। तो इंपॉर्टेंट है कि हड़बड़ी में एग्जाम पे ये वाला एंगल दिया हुआ है या ये वाला एंगल दिया हुआ है, अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है तो sin वाला फार्मूला, अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है तो cos वाला फार्मूला। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अभी हम उसको एक एक करके सर अप्लाई ये करने वाले हैं। कंडक्टर का डिस्टेंस फिक्स्ड है, मतलब कंडक्टर का लेंथ? नहीं, कंडक्टर लेंथ तो मैंने बताया ना अभी कि अगर मैं phi 1 को बढ़ा दूं तो लेंथ इस साइड में बढ़ जाएगा, अगर मैं इस साइड पे बढ़ा दूं तो phi 1 बढ़ जाएगा, तो कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाएगा। तो हमने लेंथ की जिक्र ही नहीं की है, ठीक है? हाँ सर। स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार अगर केस फिक्स हो गया तो अल्फा फिक्स है, बीटा फिक्स है, करंट कितना जा रहा है वो भी फिक्स है, और म्यू नॉट बाय 4 पाई भी फिक्स है। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो अगर कभी भी उसने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ द रिलेशन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड एंड आर विल बी, कैसे होगा? बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर ना, सर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ना, दैट मींस कैसे होगा कर्व, इट विल बी लाइक दिस ना, अपर पैराबोला। यस सर। तो आप 4 ऑप्शन दिया होगा, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, बी और आर कैसे वेरी कर सकता है, ठीक है? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?